Welcome class 12. Today we are going to discuss about the distinction between right shares and bonus shares. So first we will see the meaning of the right shares and bonus shares. In rights issue, shares are offered to the existing equity shareholder, that is company offer the shareholder the first option to buy the shares of the company. Means in these kinds of the shares, company first offer their shares to their existing equity shareholder. मीन्स कंपनी अपने शेयर्स को अगर ऑफर करती है पब्लिक में, अगर वो इशू करती है, सबसे पहले कंपनी उसको अपने जो उनके ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर है पहले उन्हें ऑफर करेगी. मीन्स कंपनी फर्स्ट गिव द राइट टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर टू परचेज देयर another share which is issued by the company. Means here the company give the first option to their existing equity shareholder to buy their share of the company. So this is the right shares. Okay, now bonus shares, it is issued to the existing equity shareholder at free of कॉस्ट. यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स एज अ बोनस एज अ गिफ्ट वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब मीन्स बिना पैसों के वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को, मीन्स जो उनके इक्विटी शेयर होल्डर है, जो उनके ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करती है. सो दिस इज द मीनिंग of the right share and bonus share. It is a difference between the right share and bonus share. Now second point is the payment. Okay, subscriber have to pay for the right shares. Company only give them a right to buy these shares. यहाँ पे सब्सक्राइबर को क्या करना पड़ता है, द सब्सक्राइबर हैव टू पे मनी, और मीन्स और ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सब्सक्राइबर हैव टू पे द वैल्यू ऑफ द राइट शेयर्स. यहाँ पे सब्सक्राइबर जो भी परचेस करते हैं शेयर्स को, दे हैव टू पे द वैल्यू ऑफ द राइट शेयर, जो भी उसके अमाउंट राइट शेयर के वो देने पड़ते हैं. यहाँ पे कंपनी ओनली क्या करती है, यहाँ पे कंपनी ओनली गिव देम अ राइट टू बाय दिस शेयर फर्स्ट. मतलब यहाँ पे कंपनी फर्स्ट उनको राइट ही देती है, ऑप्शन देती है कि दे कैन परचेस और बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी फर्स्ट. यहाँ पे पहले कंपनी सिर्फ उनको ऑफर करती है शेयर्स को. बट इन बोनस शेयर्स, द बोनस शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर. यहाँ पे सब्सक्राइबर हैव नॉट टू पे एनी मनी फॉर द बोनस शेयर्स. ओके, next third point is there the partly or fully paid up share. Okay, shareholder have to pay for these shares as application money, allotment, call money, etc. till the full money on share is paid. Here the shareholder have to pay the for the share. यहाँ पे shareholder को have to pay for the share as a normal way like application money, allotment money, call money, etc. जब तक शेयर्स की फुल वैल्यू नहीं कलेक्ट हो जाती है कंपनी में, तब तक शेयर होल्डर को एज अ नॉर्मल शेयर होल्डर और नॉर्मल सब्सक्राइबर वहाँ पे उनको पैसे देने पड़ते हैं. बट इन अ बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स. Here the subscriber has no need to pay money to the company. So no money has to be paid by the shareholder to the company. Okay, next point is the minimum subscription. Okay, company has to obtain minimum subscription. If the company fail to receive minimum subscription, so it has to refund the entire application money received. यहाँ पे कंपनी को कम से कम उनका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो ऑब्टेन करना पड़ता है. If company are unable to receive the minimum subscription, if company got failed to earn or receive the minimum subscription, so in that case the company has to return or refund the entire application, whatever the amount collected by the application money. जो भी application money के थ्रू कंपनी ने अमाउंट कलेक्ट किया है, those all money means all entire application money whatever collect by the company as a application money, company have to return if company fail to receive the minimum subscription. मीन्स अगर कंपनी
फेल हो जाती है, अगर कंपनी फेल हो जाती है रिसीव करने में मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी को जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने अर्न की है, ली है, रिसीव की है सब्सक्राइबर से, वो उसे रिटर्न कर देनी पड़ेगी. बट इन बोनस शेयर्स देयर हैज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड एज बोनस शेयर, बिकॉज कंपनी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है. हियर द कंपनी आर इशूइंग देयर शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर. अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे रही है, तो यहाँ पे उनको कोई ज़रूरत नहीं है मिनिमम सब्सक्रिप्शन दिखाने की, बिकॉज यहाँ पे कंपनी पैसे ही नहीं ले रही है. ओके. Now fifth point, right to re-announce. Okay, here the shareholder can re-announce his shares. यहाँ पे shareholder अपने shares को re-announce कर सकते हैं, but here the shareholder cannot re-announce his bonus shares. यहाँ पे shareholder अपने जो भी कंपनी ने shares दिए उसको re-announce नहीं कर सकते. 6. Purpose of issue. Okay. What is the purpose of issue of rights share? Okay, right issue is done by a company when it want to raise fresh fund but want to give a chance to their existing members to increase their shareholding. यहाँ पे कंपनी को क्या चाहिए, कुछ फ्रेश फंड की ज़रूरत होती है. सो इस केस में कंपनी क्या सोचती है कि वो अपने अनदर शेयर होल्डर को नहीं बनाना चाहती, वो चाहती है कि जो ऑलरेडी उनके शेयर होल्डर हैं उनके थ्रू ही उनको फंड मिल जाए. तो यहाँ पे कंपनी अपने जो उनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको ही चांस देती है कि वो क्या करें, उनके शेयर्स को परचेस करें और उनके थ्रू ही उनको फ्रेश फंड मिल जाए कंपनी को. तो ये पर्पस होता है राइट शेयर इशू करने का. बट इन बोनस शेयर्स व्हेन कंपनी हैज़ accumulated a huge profit or reserve and company want to reward it existing shareholders, so company can issue bonus share. यहाँ पे कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी जो भी accumulated प्रॉफिट जमा करके रखा है एज अ रिजर्व, कंपनी ने जो अनडिवाइडेड डिविडेंड थे वो नहीं दिए हैं, और डिस्ट्रीब्यूट जो नहीं किए थे, या फिर जो उनका प्रॉफिट उन्होंने जमा करके रखा है प्रीवियस ईयर का बहुत ह्यूज प्रॉफिट जमा करके रखा है, रिजर्व जमा करके रखा है, और कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसको एज अ रिवॉर्ड देना चाहती है. सो इन दैट केस द कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है. सो दिस इज़ द टोटल 6 पॉइंट्स ऑफ द राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स. यही पूरे 6 पॉइंट हमने देख लिए आज. इक्विटी शेयर होल्डर्स हमने देख लिए आज राइट शेयर्स के और बोनस शेयर के डिस्टिंक्शन के. सो ये था हमारा पूरा डिस्टिंक्शन इन बिटवीन दी राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स. ओके, गुड बाय.